अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। ज़िले पेद्दापल्ली की नौ तामीर करदा कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का वज़ीर आला KCR ने किया इफ्तिताह। रियासत भर में तरक्याती काम जारी रहेंगे, KCR ने आवाम से किया खिताब। नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर मुनक़िदा 2K रन को रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने झंडी दिखाई। सिद्दीपेट में फुटबॉल और वॉलीबॉल एकेडमी कायम करने का ऐलान। वबाई अमराज से बचने और एहतियाती इक़दामात के सिलसिले में मेडिकल तलबा ने जलपली म्यूनसिपालिटी हुदूद में चलाई शऊर बेदारी मुहिम। साइबर फ्रॉड में मुलविस गैंग का पर्दाफाश, जाली वाइप कॉल सेंटर पर धावा। साइबराबाद साइबर क्राइम की बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ, कमिश्नर साइबराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने ज़िले पेद्दापल्ली में नौ तामीर करदा कलेक्ट्रेट दफ्तर की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासत के तमाम अजला में नौ तामीर करदा कलेक्ट्रेट दफातर को डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड ऑफिस का नाम दिया जा रहा है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला KCR कर रहे हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तरक्की के ज़ीने तय कर रही है और तमाम अजला में सरकारी दफातर बिलखुसूस कलेक्ट्रेट और उससे जुड़े तमाम दफातर को एक ही मुकाम पर तामीर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत रियासती हुकूमत के तरक्याती इक़दामात में रुकावटें खड़ी कर रही हैं। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि तेलंगाना की आवाम का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा। తెలంగాణ ఆత్మగౌరవాన్ని 60 ఏళ్లు కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ ఆత్మగౌరవంతోనే ఉందామా? మళ్ళీ ఢిల్లీ వచ్చే ఏజెంట్లకు, దొంగలకు, గజ దొంగలకు సర్దిగట్టి గులాంలు అయిదామా? దయచేసి ఆలోచన చేయండి. 26 రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి రైతులు నాకు చెప్పినారు, సార్ తెలంగాణలో ఉన్న ఏ ఒక్క పథకం మాకు లేదు, మా వడ్లు కొనరు. మీరందరూ చూసినారు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, మంత్రులు, నేను స్వయంగా పోయి ఢిల్లీలో ధర్నా చేసే పరిస్థితి. ప్రధానమంత్రికి ఏమైనా తెలివితేటలు ఉన్నాయా? ఇవాళ ధాన్యం కొనమంటే కొనుడు చేత కాదు, మేము ఏడబెట్టుకోవాలని మాట్లాడతారు. ఈరోజు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బియ్యానికి కాదు, నూకలకు కూడా షార్టేజ్ వస్తూ ఉంది, గోధుమ పిండికి కూడా షార్టేజ్ వస్తూ ఉంది. ఈ తెలివి తక్కువ కేంద్ర ప్రభుత్వం వల్ల ఇలా గోధుమలు దిగుమతి చేసే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది, బియ్యం కూడా దిగుమతి చేసే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. ముందు చూపు లేక, పరిపాలన చేతగాక, పిచ్చి పిచ్చి విధానాలతోని అట్టర్ ఫ్లాప్ చేసి దేశ ఆర్థిక స్థితి దిగదార్చి రూపాయి విలువ పతనం చేసి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో దేశ ప్రతిష్ట దిగజార్చి పేదల కడగండ్లు పోసుకునేటువంటి ఈ దుర్మార్గమైన ప్రభుత్వం ఏం చేస్తూ ఉంది? ఇలా దయచేసి ఆలోచన చేయాలి. మోసపోతే గోసపడతాం, ఒకసారి దెబ్బతింటే చాలా వెనుకకు పోతాం. మీ బిడ్డగా నేను ఒకటే మాట చెప్తా ఉన్నా, కూలగొట్టడం చాలా అలకటి పని, కట్టడం చాలా కష్టమైన పని. ఇవాళ మనం బాగుపడే సమయంలో ఈ దుర్మార్గులు వచ్చి, ఈ గజ దొంగలు, ఈ లంచగొండులు వచ్చి లక్షల కోట్ల రూపాయల ప్రధాన ధనాన్ని దోస్తున్న ఈ దొంగలు వచ్చి ఏం చెప్తా ఉన్నారు? మతం పేరు మీద కొట్లాడుండ్రి, శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టులలో పారేటువంటి స్వచ్ఛమైన నీళ్లు వారాన్నా, మత కళాల మంటలు చెలరేగి నెత్తురు వారాన్నా? ఏం బారాలే? వినబడతలేదు. ఈ నెత్తురు వారించమని చెప్పేటువంటి పిశాచులు, ప్రజల మధ్య ద్వేషం లేపేవాళ్ళు ఎక్కడికక్కడనే దయచేసి ఏ గ్రామానికి ఆ గ్రామంలో, ఏ జిల్లాకు ఆ జిల్లాలో చైతన్యవంతులమై తగిన బుద్ధి చెప్పాలి. ఈ దొంగల బారిన పడితే చాలా ప్రమాదం వస్తుంది. నేను చెప్పే మాటలలో సత్యం ఉన్నది, అందుకే ఆకాశం నుంచి చినుకులు కూడా పడతా ఉన్నాయి. మిమ్మల్ని తడిపే ఇష్టం నాకు లేదు. నేను ఎత్తి మీద ఉన్నా, నాకు దూరం నుంచి కనబడతా ఉంది.
ఇంకో 2-3 నిమిషాలలో వర్షం కూడా వచ్చే పరిస్థితి ఉంది. మీరందరూ కూడా ఒకటే మాట ఆలోచన చేయాలి. రైతులకు మేలు చేస్తే, రైతు కూలీలకు పెన్షన్ ఇస్తే, పేదవాళ్ళని ఆదుకుంటే అవి ఉచితాలు, అవి బంధు పెట్టాలంట. రైతులకు ఫ్రీ కరెంట్ ఇస్తే లేదు లేదు ఇయ్యద్దు, మీటర్ పెట్టాలంట. ఎందుకు పెట్టాలి మీటర్ నాకు అర్థం కాదు. దేనికోసం పెట్టాలి? ఈ పెద్దపల్లి నుంచే నేను అనౌన్స్ చేస్తా ఉన్నా, రేపు రాబోయేది భారతదేశంలో ఈ బీజేపీని పారదోలి రైతుల ప్రభుత్వం రాబోతా ఉంది. ఇంకో సత్యం కూడా నేను మనం చేస్తా ఉన్నా, విలేకరుల సోదరు రాయాలి. పెద్దపల్లి విలేకరులకి ఆ గౌరవం దక్కుతా ఉంది. ఈ గోల్మాల్ ప్రధానమంత్రి, ఈ గోల్మాల్ కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పేదేంది? పచ్చి అబద్ధం, మోసం. దేశ रियासती वज़ीर KT रामाराव ने मणिपुर की एक फैमिली के साथ हुए नारवा सलूक के सिलसिले में IK स्टोर से माजरत ख्वाही का मुतालबा किया है। मणिपुर की मुतवत्तिन एक खातून के साथ नस्ल परस्ती पर मुबनी सलूक के बाद उसके शौहर ने ट्विटर का सहारा लेते हुए शिकायत की थी, जिस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए रियासती वज़ीर KTR ने IK स्टोर से कहा कि इस किस्म का रवैया ठीक नहीं है। इस सिलसिले में माजरत ख्वाही की जाए और अपने स्टाफ अरकान को सही ट्रेनिंग भी दी जाए। रियासती वज़ीर सेहत T हरीश राव ने नेशनल स्पोर्ट्स डे की मुनासिबत से सिद्दीपेट में मुनक़िदा 2K रन को झंडी दिखाकर रवाना किया। नाज़रीन, इस खबर के साथ नज़र डालेंगे दीगर अहम खबरों पर भी। वज़ीर सेहत हरीश राव ने अपने ज़िले सिद्दीपेट में नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर 2K रन को झंडी दिखाकर रवाना किया। बादअज़ां उन्होंने इस रन में कामयाब होने वालों में इनामात की तकसीम भी अमल में लाई और ख़िताब करते हुए बताया कि मुस्तक़बिल में सिद्दीपेट में फ़ुटबॉल और वॉलीबॉल की एकेडमी भी कायम की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर एक को खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए, इससे सेहत तंदुरुस्त रहती है। हरीश राव ने बताया कि रियासती हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में खेल को फ़रोग़ देने की वजह से रियासत के खिलाड़ी कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के खेलों में हिस्सा ले रहे हैं और गोल्ड मेडल हासिल करते हुए तेलंगाना का नाम रोशन कर रहे हैं। वज़ीर पंचायत राज ई दयाकरव ने वरंगल में हुकूमत की जानिब से तामीर किए गए 50 डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताही तक़रीब में हिस्सा लेने के अलावा एक और तक़रीब में आसरा वज़ाइफ के तहत मंजूर किए जाने वाले वज़ाइफ के पेंशन कार्ड्स तक़सीम किए। वज़ीर पंचायत राज ई दयाकरव ने खिताब करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत अवामी हुकूमत है जो फलाही स्कीमात को रूबे अमल लाते हुए हर घर में खुशहाली लाने के इक़दामात कर रही है और हाल ही में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आसरा वज़ाइफ के तहत 57 साल की उम्र वाले अफराद को भी वज़ाइफ फराहम करने का आगाज़ किया। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत और बीजेपी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि मरकज़ी हुकूमत को तेलंगाना में किए जाने वाले फलाही इक़दामात हज़म नहीं हो रहे हैं और मरकज़ की बीजेपी हुकूमत किसानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, जिसकी वजह से मुल्क भर के किसान मुश्किलात से दो चार हैं। रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी ने ज़िले नलगुंडे के मंगोड़ असम्बली हल्के में मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना में कांग्रेस का दिवालिया निकल चुका है और बीजेपी तेलंगाना में अपने वजूद और बीजेपी कायदीन अपने सियासी बका के लिए नाकाम जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि रियासत की अवाम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और TRS हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद करती है, जबकि एक या दो इंतखाबात को छोड़कर हर इंतखाबात में TRS ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने दावा किया कि मंगोड़ असम्बली ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार अपनी ज़मानतें भी बचा नहीं पाएंगे। TRS इस हल्के से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी।
حیدرآباد کے مشرقی زون میں آج صبح کے بعد مختلف مقامات سے بارش کی اطلاعات ملی ہیں۔ حیدرآباد میں گہرے بادل دیکھے گئے، تاہم صبح 11 بجے کے بعد دھوپ نکل آئی۔ محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی ہے کہ ریاست تلنگانہ بشمول حیدرآباد میں وقفے سے بارش ہو سکتی ہے۔ پیر کی صبح ایبٹس، نامپلی، آصف نگر، گولکنڈہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھی شدید بارش ہوئی ہے، جبکہ ریاست تلنگانہ کے دیگر اضلاع سے بھی بارش کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ صبح ہوئی بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر سڑکوں پر پانی جمع دیکھا گیا، جبکہ بلدیہ کی ہنگامی ٹیموں کو بھی موسم کی پیش قیاسی کو دیکھتے ہوئے چوکس کر دیا گیا ہے۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی ہدایت پر جلپلی میونسپلٹی کے حدود میں دکن میڈیکل کالج کے MBBS کے طلباء نے گھر گھر جا کر شعور بیداری مہم چلائی۔ مختلف وارڈز میں کالج کے طلباء نے گشت کرتے ہوئے وبائی امراض سے بچنے اور اس سلسلے میں احتیاطی اقدامات کے بارے میں بھی شعور بیدار کیا، اور طلباء کی طرف سے وبائی امراض سے متاثرہ افراد کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی گئی۔ قائد مجلس کی ہدایت پر اب ہر ماہ دکن میڈیکل کالج کے طلباء کی طرف سے گھر گھر مہم چلائی جائے گی، تاکہ اس علاقے کی عوام کو سہولت ہو اور ان کے بروقت علاج کو بھی یقینی بنایا جا سکے۔ اس موقع پر جلپلی مجلس کے انچارج احمد سعدی، صدر نشین جلپلی میونسپلٹی عبداللہ سعدی، سینئر لیڈر حبیب آصف جیلانی، کونسلر محمد دستگیر کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ ڈائی ہارڈ بک ریڈرز کی جانب سے پروفیسر محمد مسعود احمد، ڈائریکٹر میسکو کی کتاب پر بک ریڈنگ، مشاعرہ، مینجمنٹ ورکشاپ اور کوئز کا انعقاد بنجارہ ہلز میں واقع لامکان میں کیا گیا۔ TRS اقلیتی قائد و سماجی جہدکار خلیق الرحمان، گلوکار عدنان سالم، شاعر اسلم فرشوری نے مہمانان کی حیثیت سے شرکت کی اور خطاب کیا۔ محترمہ شبینہ فرشوری، عدنان سالم اور خلیق الرحمان نے کتاب پر اپنا تبصرہ پیش کیا۔ ڈائی ہارڈ بک ریڈرز کے بانی اور سربراہ فراز فرشوری نے مہمانوں و شرکاء کا خیر مقدم کیا اور اس ایونٹ کو منعقد کرنے کے پس پردہ محرکات پر روشنی ڈالی۔ پروفیسر محمد مسعود احمد نے اپنی کتاب کا تعارف پیش کرتے ہوئے اسے تحریر کرنے کے مقاصد پر تفصیل بھی بتائی۔ اس تقریب میں مختلف شعبے جات سے وابستہ خواتین و حضرات موجود تھے۔ میرا جو 31 سال for this occasion, I think it is the first event about the book reading titled as Leadership Excellence from Poetry. Just to set the context, first I would like to congratulate the die-hard book reader group, the community, that they are taken the initiative for this event. Because from last few years,
the books, the reading. میں کی بات میں آپ کے سامنے لاؤں تو میں ریڈ کرنا چاہوں گا. جو پہلا شعر میں نے چنا تھا وہ پروفیسر محمد مسعود احمد صاحب کا ہی شعر ہے, تو آپ کے شعر سے میں آغاز کرنا چاہوں گا. دشمن تو لوہا مان کے دیوانہ ہو گئے. کہ اس کتاب کا ایک ایک لفظ پڑھوں اور اپنے اندر اس کو سموں, کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ اس کے اندر جو اشعار کا انتخاب مسعود بھائی نے کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آرڈنری شخص, ہم جیسے شخص کے لیے ناممکن بات ہے وہ, کیونکہ اس کا ایک لفظ سمجھنا ہی بہت بڑی بات ہے. مسعود بھائی نے, میں خود ایک رائٹر ہوں, بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی ہماری تحریر کو پڑھتا ہے, اس کو سراہتا ہے, تعریف کرتا ہے. تو مسعود صاحب نے بک ریڈنگ کا جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ قابل تعریف ہے. ورنہ لوگ کتابیں لے جاتے ہیں اور اپنی ٹیبل پر اور اپنی لائبریری کی زینت بنا دیتے ہیں. پچھلے دنوں جب یہ گھر آئے تو اپنی دونوں کتابیں مجھے اور اسلم کو گفٹ میں دیں. میں نے, میرے بچوں نے, میرے پوتے عمر فرشوری نے, سب نے اسی وقت اس کو پڑھا اور ان کو. جو جناب پروفیسر محمد مسعود احمد صاحب کی لکھی ہوئی کتاب لیڈرشپ ایکسلنس فرام پوئٹری, اس کا ایک بک ریڈنگ سیشن یہاں پہ ڈائی ہارڈ فوڈیز, ڈائی ہارڈ بک ریڈرز کی جانب سے منعقد کیا گیا, جس کے لیے میں جناب فراز فرشوری صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, اور جناب پروفیسر مسعود احمد صاحب جو بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت ہے اور حیدرآباد سے جن کا تعلق ہے, بہت اچھے کتابیں انہوں نے لکھی ہے, اور خاص طور پہ یہ جو لیسنس ہے فرام دا مینجمنٹ, اور پھر یہ جو مینجمنٹ کے جس طریقے سے سمجھیے آپ, انہوں نے اپنا جو ذاتی تجربہ رہا ہے, کیونکہ وہ تدریس قریب 30 سال سے 3 دہوں سے زیادہ وہ تدریسی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں, اور بہت سارے کالجز سے 200 سے زیادہ انسٹیٹیوشن سے مسعود صاحب کا تعلق ہے. انہوں نے وہ پورے اپنے تجربے کو کس طریقے سے سمجھیے شاعری کے ساتھ جوڑتے ہوئے کس طریقے سے انسپائر ہو سکتے ہیں لیڈرز, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو, چاہے وہ بزنس میں ہو, پولیٹکس میں ہو, یا سوشل فیلڈ میں ہو, ان سب کو کس طریقے سے سمجھیے آپ اس بک سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. انہوں نے آج یہاں پہ ہمارے بیچ میں اس محفل کو سجا کے ڈائی ہارڈ بک ریڈرز کی جانب سے اور ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے جو یہاں پہ محفل کی گئی, جس کے لیے یہاں پہ 100 کی تعداد میں سامعین نے شرکت کی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی حیدرآباد جاگتا ہوا شہر ہے. یہاں پہ بس یہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمارے بیچ مسعود صاحب جیسی شخصیتیں جو ہمیشہ ہمارے بیچ رہتی ہے, اس طریقے سے محفلوں کو سجاتے رہے. اور یہ جو لیسنس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہر اس مینجمنٹ گریجویٹ کو پڑھنا چاہیے, ہر اس بزنس مین کو پڑھنا چاہیے, ہر اس سوشل لیڈر کو پڑھنا چاہیے جو کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں کرنا چاہتا ہے. اور میں جناب مسعود صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اس موقع پہ ہمارے ساتھ حیدرآباد کی ہر دل عزیز شخصیت اور جانے مانے غزل کار جناب سید عدنان سالم صاحب بھی موجود ہے, جناب اسلم فرشوری صاحب, شبینہ صاحبہ, اور بہت سارے حیدرآباد کی معزز شخصیتیں آج اس محفل کی زینت بنے ہوئے تھے. اور پھر صوفیہ صاحبہ بھی یہاں پہ موجود ہے. تمام کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور خاص طور پہ آپ کے چینل کے جتنے ناظرین ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اردو جو ہماری مادری زبان ہے, ہماری تہذیب ہے, ہمارا کلچر ہے, اس کو آپ فروغ دیجیے, پروموٹ کیجیے, اور اپنے خاص طور پہ بچوں میں جو اردو مدارس میں نہیں پڑھائی جا رہی ہے گھروں پہ پڑھائے. اور خاص طور پہ یہ جو کتاب آپ کے سامنے میں بتا رہا ہوں, اس کتاب کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں, اس کے پیچھے یہاں پہ ایڈریس بھی ہے, زیادہ سے امیزون پہ یہ کتاب موجود ہے, آپ لوگ آرڈر کیجئے, منگائیے اس کاپی کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر گھر میں یہ کتاب ہونا چاہیے اور ہر لائبریری کی یہ زینت ہونا چاہیے. شکریہ.
साइबर क्राइम पुलिस साइबराबाद ने एक बैन रियासती गैंग का पर्दाफाश किया जो साइबर फ्रॉड में मुलविस पाई गई है। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा IPS के मुताबिक इस गैंग के 4 अराकीन को हिरासत में लिया गया, जिनमें सरगना 32 साल अभिषेक जैन भी शामिल है। मज़कूरा गैंग तकरीबन 27,90,000 रुपये की धोखाधड़ी में मुलविस पाई गई। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद ने इस सिलसिले में मीडिया को मज़ीद तफसीलात बताई। अचिरेडी नगर तिगलकुंटा में एक मकान से सरखे की वारदात अंजाम दी गई। सारखीन ने इस मकान से 2 लाख रुपये नकद रकम के अलावा 5 तोले तिलाई जेवर और दीगर अशिया उड़ा ली। शिकायत मौसूल होने के बाद फलकनुमा पुलिस ने मुकामी वाक़े का मुआयना किया और शवाहिद इकट्ठा करने के बाद एक केस भी दर्ज किया गया। पुलिस ने इस केस के सिलसिले में तहकीक़ात का भी आगाज़ किया है। पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन हदूद में सड़क के किनारे जवार फरोख्त करने वाली खातून हादसे में हलाक हो गई। बताया गया है कि दोलापल्ली में मैसम्मा गौड़ से आने वाली ब्रेजा गाड़ी के ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए खातून को टक्कर दे दी। बताया जा रहा है कि 60 साल चिन्नम्मा जवार और मकई बेचकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। पुलिस ने कार ड्राइवर अजय को गिरफ्तार कर लिया और मज़ीद तहकीक़ात जारी है। साइबर क्राइम पुलिस साइबराबाद ने जाली इंटरनेशनल वॉइस कॉल सेंटर पर धावा किया और धोखाधड़ी में मुलविस इस गैंग के 17 अराकीन को हिरासत में लिया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा IPS ने इस रैकेट के बारे में बताया कि कमीशन के तहत मज़कूरा कॉल सेंटर चलाया जा रहा था, जो धोखे के ज़रिए बैरूनी ममालिक के बाशिंदों को ईमेल भेजता और उनकी इंफॉर्मेशन को जमा करते हुए दीगर कंपनियों को फ़रोख्त किया जा रहा था। कमिश्नर पुलिस ने इस सिलसिले में मीडिया को मज़ीद तफसीलात बताई। మనము 3 మెంబర్స్ని దెన్ కోల్కతాలోని అబౌట్ 14 మెంబర్స్ని ఇప్పుడు దాకా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా చూస్తే ఇది 2 విధాలుగా ఈ వాయిస్ కాల్ సెంటర్ ఇది జరుగుతూ ఉన్నది. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఒక 3 మెయిన్ పీపుల్ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఆల్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్. ఇక్కడ బాచుపల్లిలో ఒక విలా తీసుకుని వీళ్ళు ఫారెన్ కంట్రీ అంటే ఎక్కువ మనకి యూరప్ దెన్ యుఎస్లో ఉన్న పబ్లిక్కి వీళ్ళు బల్క్ SMS బల్క్ ఈమెయిల్స్ ద్వారా వీళ్ళు కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే కంటెంట్ పంపుతూ ఉంటారు. ఈ కంటెంట్ని చూసి అక్కడ మనకి ఫారినర్స్ చాలామంది రెస్పాండ్ అయితే దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కలకత్తా కాల్ సెంటర్కి డైవర్ట్ అవుతాయి. సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ప్రధానంగా వీళ్ళు అక్యూజ్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు యాంటీవైరస్ కంపెనీ అంటే నోట్రాన్ అన్న యాంటీవైరస్ కంపెనీ ఉన్నది. ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అని పోస్ట్ చేసుకుని వీళ్ళు మీకు యాంటీవైరస్ అవసరం ఉన్నది, సో మీ సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా హ్యాక్ అయినాయి, మీ సిస్టమ్స్ సాఫ్ట్వేర్ అన్నది యాంటీవైరస్ అన్నది అప్డేట్ చేయాలి లేకపోతే కొత్తది కొనాలని చెప్పి ఎక్కువ US సిటిజన్స్ని టార్గెట్ చేస్తూ వీళ్ళు ఈ పర్టికులర్ ఫ్రాడ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ కూడా చూస్తే మనకి
प्रधान जो है यूएस सिटीजन्स के ईमेल आईडीज़ का एक्सेस था अक्यूज्ड को, और उन्होंने टोल फ्री नंबर्स जो लगता है आपको कि वो यूएस से नंबर आ रहा है, जो स्टार्टिंग के डिजिट्स होते हैं उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो लगता है यूएस से आ रहा होता है, बट उसके पूरे कॉल सेंटर्स हमारे कोलकाता में बेस्ड थे, और वहाँ से कॉल करके नॉर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम यूज़ करके कि आपका रिन्यू होना है, लाइसेंस आपका एक्सपायर होने वाला है, अगेन ये थ्रेट दिखा के कि कुछ अगर आप स्टेप नहीं लेंगे तो आपका एक्सपायर हो जाएगा, आपके लॉसेस होंगे, इस तरह के कॉल करके और फिर उनसे वो पैसे लेके इसके नाम पे वो विक्टिम से पैसे लेते थे, और ये सारे यूएस सिटीजन से पैसे लेके और फिर उसके बाद उसको पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका इनका अलग अलग रहता था। उन्होंने बैंक अकाउंट्स में जैसे सर ने बताया कि पेरू के, थाईलैंड के इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स, इंडियन बैंक अकाउंट्स में इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स यूज़ करते थे, और उसको अपने आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या तो वो बिटकॉइंस के ज़रिए ट्रांसफ़र कन्वर्ट कर लेते थे या तो फिर गिफ्ट कार्ड्स में इन्वॉल्व कर लेते थे, क्योंकि जनरली क्या होता है, अभी जैसे जो पहला केस हमने बताया उसमें कैश विड्रॉ होता है, ये दूसरे केसेस में कैश विड्रॉ करने की जगह उसको वो गिफ्ट कार्ड में कन्वर्ट कर रहे थे या बिटकॉइंस में। तो इसी में हमारा पहला जो लीड मिला था वो यहाँ हैदराबाद में जो मेन लोग थे जो ये मनी ट्रांसफ़र का काम कर रहे थे, और फिर इनके थ्रू हमें कोलकाता के कॉल सेंटर के बारे में पता चला और वहाँ पे पूरी टीम गई। तो इस टीम का मेन इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने किया था, तो ये आपको डिटेल बताएंगे। मेल करते, इधर से बल्कि एसएमएस पुश करते, यूएस सिटीजन्स को बल्कि एसएमएस को पुश करते, इंटर्न ये कलकत्ता जो टीम है वो कॉल सेंटर वाले को कॉल्स आता, कॉल में बात करने के बाद पूरा नाटन एंटीवायरस का नाम में बात कर रहे, वो रिन्यूअल के नाम पे बात कर रहे, अगर वो उसका सिस्टम इन्फेक्ट हो गए नाटन एंटीवायरस लेना बोल के बोलते, कैसे भी कन्विंस करके उनसे पैसा लेते। पैसा लेने का तरीका तीन तरीके से पैसा ले रहे, एक तो स्ट्रेट अवे ये लोग इनका इंटरनेशनल बैंक अकाउंट से पैसा मंगवा रहे, सेकंड चीज़ है आई मीन पेमेंट आईडी जनरेट कर रहे, पेमेंट आईडी का थ्रू पैसा ले रहे, तीसरा चीज़ है एक गिफ्ट कार्ड का थ्रू, गिफ्ट कार्ड जो यूएस का गिफ्ट कार्ड मर्चेंट बिग बड़ा मर्चेंट जो है उसका नाम पे गिफ्ट कार्ड खरीद के उधर से इनकैश कर रहे हैं। और एक टोल फ्री प्रोवाइडर भी अलग है, यूएस का टोल फ्री नंबर ये लोग प्रोवाइड करने वाला अलग है, उसको भी पकड़ लिया। तालीम हासिल करने के लिए उम्र की कोई क़ैद नहीं होती और किसी भी उम्र में तालीम हासिल की जा सकती है। ये मक़ौला सिद्दीपेट के मुतवत्तिन शेख अहमद अयास पर सादिक़ आता है, जिन्होंने 65 साल से ज़ायद उम्र में LLB का इम्तिहान कामयाब किया और क़ानून की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। LLB की कामयाबी पर उनके अहबाब की जानिब से एक तहनीती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसकी निगरानी और सदारत सैयद कलीम प्रेसिडेंट दक्कन NRI ग्रुप और अक्सा वेलफेयर सोसाइटी ने की, जबकि मोहम्मद महमूद हुसैन हाल मुकीम अमरीका ने इस तकरीब में मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत करते हुए शेख अहमद अयास को मुबारकबाद भी पेश की। शेख अहमद अयास ने बताया कि क़ानून की डिग्री इस उम्र में हासिल करने का मकसद रुपये कमाना नहीं है बल्कि कौम की खिदमत करना है। शेख अहमद अयाज 1982 ta 2006 सरकारी मुलाजिम भी रह चुके हैं। इस मौके पर मोहम्मद सिद्दीक हुसैन के अलावा दीगर भी मौजूद थे, जिन्होंने मुबारकबाद पेश की। मेरे हमजमात जो बचपन से मेरे साथ पढ़े और उसके बावजूद भी जो है सो हम लोग एक दूसरे के टच में थे, और इतने जो है सो उम्र गुजरने के बावजूद भी मेरे जो है सो हमजमात लोग मेरे कामयाबी पर जो तकरीब मुनक़िद किए, खुसूसन सैयद कलीम साहब और सिद्दीक हुसैन साहब, उन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और पहले भी जो है सो मैं वाज़ेह तौर पे ऐलान कर चुका था कि इस उम्र में जो है सो मैं LLB करने का सिर्फ मकसद एक ही था कि इससे जो है सो बिला लिहाज मज़हब मिलत जो है सो जो क़ानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी तरफ से मैं लड़ूँ और अपनी खिदमत पेश करूँ। पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन खिदमत जो है सो मेरा मकसद है, और उसी के पेश नज़र जो है सो मैं लासेट का एग्ज़ाम जो है सो अपीयर हुआ और एडमिशन लिया, और उसके बाद जो है सो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डिवीज़न से जो है सो पास कर लिया। खुशनसीबी है कि मैं इस
पार्टी में शामिल हो सका। मेरी तरफ से मैं दिली मुबारकबाद और खुशी का इजहार करता हूँ। मुबारक। शेख अहमद अयाज जो है हमारे जूनियर हैं, इसके बावजूद भी मैं चाहता था कि ये हाफिज़ कुरान बने, लेकिन LLB कामयाब किए, दर्जे अव्वल से कामयाब किए। और इनका वस्फ है कि तमाम लोगों में पानी की एक खासियत होती, जिस बर्तन में जाओ उसकी शक्ल अख्तियार कर लेता। तो शेख अहमद भी जिस महफिल में चले गए वो महफिल को वैसे लालाजार बना देते। और इनकी अपनी खूबी और ख़ासियत यही है, और इनकी शख्सियत जो है एक मोहताज तारुफ नहीं, हमागिर शख्सियत है। तो मैं इनसे यही उम्मीद रखता हूँ कि पेशे वकालत में कामयाब रहेंगे, मजलूमों की और जो भी कानूनी मदद के लिए आएंगे इनकी मदद करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनको सेहत दे और उम्र दराज करें। अल्लाह का एहसान हो, शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त शेख अहमद साहब ने अपनी LLB में जो है फर्स्ट क्लास में कामयाबी हुई है। और जो है उसके साथ साथ जो है हमारे और मेहमान जो है हमारे बहुत खुशूसी दोस्त और हमारे बचपन के दोस्त महमूद हुसैन भी हमारे साथ शरीक हैं, जो चेयरमैन मेडिसिन डिपार्टमेंट USA में है। तो और दूसरे हमारे जितने भी साथी यहाँ शरीक हैं उन सबका मैं फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ आए और इस महफिल को कामयाब बनाया। और हम बार बार जो है इस महफिल मुनक़िद करते रहेंगे और इसके लिए जो है हमारी कोशिश रहेगी कि भाई हम खुद कौम के खिदमत के जरिए से इस काम को करेंगे और कौम की खिदमत के लिए भी हम जमा होंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली में इक़रा लेडीज़ टेलरिंग व कटिंग और मेहंदी डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ के मुफ्त नए बैच का 1 सितंबर 2022 जुमेरात से आगाज़ हो रहा है। ख़वातीन और तालिबात की तरबियत के लिए माहिर लेडीज़ इंस्ट्रक्टर की खिदमत हासिल की गई हैं। इन कोर्सेज़ में दाखिले के लिए कोई फ़ीस वसूल नहीं की जाती। नए बैच के लिए दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। इदारे के औक़ात कार सुबह 10 बजे ता 3:30 बजे से पहर हैं। काजी सैयद शाकिर अली मोतमद तौलियत कमेटी मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली के मुताबिक मोबाइल नंबर 8142658660 पर रब्त किया जा सकता है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ज़िले पेद्दापल्ली की नौ तामीर करदा कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का वज़ीर आला KCR ने किया इफ्तिताह। रियासत भर में तरक्याती काम जारी रहेंगे, KCR ने आवाम से किया खिताब। नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर मुनक़िदा 2K रन को रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने झंडी दिखाई। सिद्दीपेट में फ़ुटबॉल और वॉलीबॉल एकेडमी कायम करने का ऐलान। वबाई अमराज से बचने और एहतियाती इक़दामात के सिलसिले में मेडिकल तलबा ने जलपल्ली म्यूनसिपालिटी हदूद में चलाई शऊर बेदारी मुहिम। साइबर फ्रॉड में मुलविस गैंग का पर्दाफाश, जाली वाइप कॉल सेंटर पर धावा। साइबराबाद साइबर क्राइम की बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ, कमिश्नर साइबराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।